Ji, Assalamualaikum everyone. Welcome to the mentoring session number 36. Is the 3rd of July 2022, Sunday, 6:30 p.m. local time, and we're gonna see what's gonna happen in BTC. We're gonna have a look on other altcoins at the moment while we are slowly bleeding to our second leg down towards 17K. So we're gonna see how it's gonna turn out and when it's gonna turn out and what are the possibilities of it. So I think enough people have joined, so let's get started. I'm gonna share my screen here. I'm gonna open my session breaks, and this is the BTC. And just to give you the overview, what happened. This is BTC, not perpetual. All right. So we broke the 4-hour trend line. We retested it. We are continuously bleeding towards that, and that was the end of the June. That was the closing of June 30th, and that was the last hour that somebody really tried to pump the BTC. I don't know, they were trying to make a new ATH or what. So just to give like the pretty old scam pump and dumps that used to happen on the weeklies and monthly closures, that what happened. And you can see it was literally the last hour of June, and as we all know that it created a massive imbalance below than that, and there was no volume either. So people were speculating that we're in a change of character. We are in the change of character because there's been created a higher low as compared to this one. So now it will gonna move like this because we have just completed this order, and now there's a change of character and we're gonna go up. But unfortunately things didn't turn out to be as they were speculating, because this is a pretty impulsive move, and a lot of candles been skipping in a minute chart, and I don't know why, what happened, to be very honest, because it's monthly closures at the very last moments really is a, you can see there's a side to see. So that was pretty much going on at that time, and since then we are constantly bleeding. Is a third day into the July, and markets gonna be off from like Saturday, today, Sunday, and tomorrow also because of the 4th of July. And there's a high chance that we might dump tomorrow. So as compared to the dailies, we have tested this level. So I'm going to remove this one. We have also rejected from that 21,481 back at here, and you can see also rejected from there, and it's still valid. So I'm going to keep it there, and the lower levels are 17,639. I'm also going to keep it because it's going to test it anytime soon. So what's happening at the moment? Are we sideways? No, we are not sideways, because we are just you can say pretty much contemplating the levels which were diverted at this point at 1st of July from 3:30 a.m. to 6 a.m. It's almost like 2.5 hours of a joke that has been created on a BTC move. So we are pretty much managing the stuff here. So in shorter time frame, I'm gonna show you what's gonna happen. We're gonna sweep low because a lot of shorts gonna have like open up. As I can see, the open interest is rising, net shorts is also rising. So what's gonna happen is that we will test this level, if you got lucky, this level also. So we're gonna test this level right here, reject it from there, and then we're gonna go down towards our low of 18,900 around here, right here. If you're gonna touch here, but we have to sweep upwards before coming down. This is our level, 18,951. This is our level. So we are pretty much close to that. There's a high chance we're gonna bounce, but the situation is it's will be like that a lot of shorts gonna open in regards that tomorrow is the 4th of July. The market's not gonna open, and there's a high chance of dumping. So they might open shorts right from here, but this is not a right
place to open a short, because this would be a perfect one. Because if you're going to open a short, they might be placing their SLs here or around here. So they're going to sweep the, like the routine stuff that happens. And there's also a huge wick. So it will going to follow it eventually. It just created a liquidity profile here. I'm also going to mark it. Liquidity profile. Also going to mark it here. So we're going to test it eventually, but sweeping the highs, then coming down the lows is what's going to happen. And that's the crucial update, to be very honest. That's, I can see it's pretty much happening at the moment. All right, so let's move towards Ethereum. Perpetual. I just changed my color scheme. I don't know if you can see it or not. I kind of like this one. Really change, really aesthetic look. And but I think you're not gonna see the levels there, so I'm gonna switch it back to the old one. I kind of like it, so I'm gonna be posting this stuff. Yeah. All right. So in Ethereum, we have to test the 900 levels. This one. Start. All right. It's already a line in there. That's the 1000 level, and there's a 970 level. Let me make it clear for you. This one. So crucial levels for Ethereum is 970 and $1,000. So oh, by the way, I just forgot, we have already talked about a few days ago regarding the area of interest, if you guys remember, this one. So we are bleeding into that level. And if we're gonna, I'm just gonna put the 60-minute chart. I'm also gonna zoom in. You can see we were talking about this area of interest. So we are already tapping into this. I'm going to extend it here. We are already tapping into this, and we are just halfway through it. So our area of interest, ends at 17,930. Not going to say that it's going to happen anytime soon, but the levels are there. The levels of 18,951 and 1943, 19211. So that's pretty much going to happen. I think it's going to tap it here, but it's going to also tap it from, sweeping the highs above. All right, so back to Ethereum. Just give me a moment. Ethereum, where's it is. All right, so Ethereum's levels are $1,000 and $970 because it has to tap the 3-digit levels, but there's a lot of buying pressure from down below, so it's keep pushing it upwards since like 19th of June we were below than that, and then it went really high. We just tapped it, the 3-digit level, at 30th of June around 6:30 p.m. Like in the evening, and yet we are above than that. So it's just like $10 difference already, and I believe it's gonna make it down sooner or later in like 970 and 1000. This was also my target price, my TP of my trade that has been given on $1,120. I hope you enjoyed it, because I went in an emergency. I couldn't follow up with you guys, but I hope you must have been closed in profit, because we were short from 1120. And I remember that I asked you guys to put your SL on 10 like 1045, 1045, and it just hit that, and then it went down all the way towards like $995. So it was a pretty good move, but I'm not gonna open the short right from here. I'm already a minor trade from 1077 at here. I open it here, 1077 here on the 1st of July, at around here. It's not, it's perpetual.
right here. So I'm in pretty good profit at the moment, but I'm not gonna ask you guys to do the same because it will also sweep the highs before going low. If you can manage your risk, if you can DCA, so no matter what you do in Ethereum, just remember to keep the liquidity above $1,200 at any cost. All right, so that was the update of the BTC and Ethereum. Now we're gonna switch the languages to native language and you're gonna ask the questions. अगर आपका कोई सवाल है तो please पूछ लें इसमें, कोई confusion है, कोई trade है, क्या मामला है आगे. So that's our discussion. Thank you. वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम. बिलाल बात कर रहा हूँ। किधर गुम हो जाते हैं हमें तनहा छोड़ के, और सर इंग्लिश भी बस हमारी खराब हो जाती है बिल्कुल। अब मेरी अब्यूज में कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, मैं असल में अब्यूज एब्सेंस लिखना चाह रहा था, वो मैं समझ जल्दी गया गया। था. आईफोन है सर, पता नहीं क्या क्या लिख देता है खुद ही। ऑटो करेक्ट इज अ लिटिल थिंग दो. और आप ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत. अच्छा, आई वाज सर जी। बिजी एक्चुअली. अचानक से बस कुछ मामला वो हो गए थे तो से पीछे था. सो आई ट्रस्ट दीज गाइस. आई होप के बीच में जो भी ट्रेड्स वगैरह आई होंगी बिकॉज दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है. उस दिन के बाद से तो जस्ट हम साइडवेज ही फिलहाल वो चल रहे हैं. एंड प्रॉब्लम इज के वी हैव टू ब्लीड इट डाउन. मार्केट को भी देखना है क्या मामला है, बट इट्स जस्ट व्हाट्स हैपनिंग. इज नथिंग मच हैपनिंग इन माय एब्सेंस. सो मैं कह रहा था शेर सर तो नहीं है, चलो CRV की जरा खबर ले लेता हूँ। अच्छा, कुछ 100% दे दिया है उसने प्रॉफिट, थोड़ा सा वीकेंड अच्छा गुजर रहा है सर जी। और दूसरी बात ये सर, दो क्वेश्चन करने थे मैंने कि एक तो सर लॉन्ग टर्म जो बाइंग है सर जी, वो मजीद जरा कॉइन बता दीजिएगा जिनका ग्लोबल सपोर्ट पे जो पहुंचने वाले हैं या पहुंचेंगे। एंड सेकंड सर, APE का कुछ बता दे कि ये किधर तक ऊपर जा सकता है, किधर तक नीचे आ सकता है सर। कौन सा वाला? APE। ए मुझे टाइप करके बता दें, वो आवाज थोड़ी. एप सर, APE एलिफेंट। अच्छा, ठीक है. ठीक है. अच्छा, एक सेकंड बस. वो नसीम साहब हमसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा मैं उर्दू में इसको डिस्क्राइब कर दूं. बेसिकली BTC में बताने का मकसद ये था कि हमने अभी शॉर्ट्स वगैरह खुलना नीचे की तरफ शुरू होंगे बिकॉज कल मार्केट बंद रहेगी 4th ऑफ जुलाई की वजह से, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे. तो अलॉट ऑफ शॉर्ट्स गोना ओपन हेयर, लेकिन होगा ये कि इसको स्वीप कर सकते हैं ऊपर. देयर इज अ हाई चांस कि हम इसको ऊपर से स्वीप कर दें, फिर नीचे लेके आए ऐसे इसके हिट करवा के. तो अभी एक 951 का लेवल था, वो अभी टैप हो चुका है while we were at 19,000 लेवल. तो ये ऑलरेडी टैप हो चुका है. सो इसके नीचे आने वाले जो लेवल्स हैं वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, वो हमने पहले बड़े लेवल्स पे बात करी हुई है. तो देयर इज अ हाई चांस विल गोना स्वीप एंड देन विल गोना गो डाउन. सो दैट्स व्हाट्स हैपेंड ऑन BTC. तो ये लेवल जो ऊपर के हैं वो है 19143 से 19211. ये तकरीबन 50-60 डॉलर्स का जो है एक बैंड है जिसको ये स्वीप कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी. राइट, सो ये है. अच्छा, उसके बाद लाल साहब मुझे चैट पे जरा बता दें कॉइन का नाम किसका आप कहना चाह रहे हैं. अच्छा, उसके एक सवाल है, एक दूसरा आया है. सलाम, कैन यू प्लीज टेल द बाइंग जोन फॉर कंपाउंड एंड एटम. अच्छा, सन न्यू हेयर, एनी एडवाइस टू स्टार्ट. देखें, अगर आपने स्टार्ट करना है तो बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह से पहले स्टार्ट करें. अगर आपने वीडियोस देख ली हैं पहले वाली 30 वीडियोस, तो आप इसको जो मेंटोरिंग सेशंस जो होते हैं इसको डिस्क्रिप्शन वाइज देखते हुए जाएं, पहले दूसरे से बिल्कुल. जो मेरा चैनल है उस पर मेंटोरिंग बाय श्वेब का स्क्रॉल अप करके, तो वहां पे कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है सिखाई भी होती हैं, कहीं ना कहीं बताई भी होती है कि हम किस तरीके से देखते हैं और फिर मार्केट का जो है किस तरीके से काम हुआ, क्या मामला हुआ. एक्सप्लोर करें 1-2 दिन, कोई जल्दी नहीं है. मार्केट अभी थोड़ी साइडवेज है तो मार्केट कहीं नहीं जा रही, बट जल्दी में कूदे मत के बस कुछ मिस हो जाएगा क्या हो जाएगा. बट जस्ट वॉक अराउंड एंड सी, एक्सप्लोर कि क्या मामला चल रहा है, एंड देन आस्क क्वेश्चन. जो भी आपकी कंफ्यूजन है फिर उसके हवाले से हम आपको बता देंगे. ठीक है. अच्छा, एप का एप का क्या मामला चल रहा है? एप का बैलेंस पूरा हो चुका था बल्कि यहाँ पे
सर जी एब जो है ना राइजिंग सपोर्ट बना रहा है, जो कि टूटने जैसी ही होती है बेसिकली। यू कैन सी हियर इज टैपिंग टैपिंग टैपिंग, और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा 1 आवर के चार्ट पे तकरीबन। इसको एक सेकंड, एंगल इसका इतना हाई नहीं है, 45 नहीं है, 21 के आसपास ही है, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, बट इट विल गोना कम डाउन एट लाइक 4.3 लेवल आएगा। तो ये है इसकी सिचुएशन। अभी ऊपर जा सकते सलामकुम। हैं। ये अभी टैप करेगा और इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर लेता है तो फिर ये नीचे आएगा, वरना ये कि इट विल टेक टाइम, ये ब्लीड करते करते थोड़ा ऐसे इधर ही साइडवेज थोड़ा चलता रहेगा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसके नीचे आने का लेवल जो होगा वो होगा 4.38 ऊपर से। सर पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें, बस मेरा सवाल खत्म, मैं फिर ठीक है, सुनूंगा। पहला आपका सवाल क्या था प्लीज वो? सर ये था कि जो लॉन्ग टर्म बैग्स हैं उसमें थोड़े से और ऐड करें और हमें थोड़ी सी बाइंग करवा दें। कुछ लोग जो हैं हेल्पिंग मेरी तरह कर सकते, वो मतलब हफ्तावार कोई मसला नहीं है। अभी नहीं, क्योंकि हम अभी नीचे पहले जाएंगे, उस पे चांस है हमारा काफी स्ट्रॉन्ग। तो एक वीक बस और रुक जाए, इस वीक में ही जो है ना वो हो जाएगा जो भी मामला है। ठीक है। ठीक है सर, रुक जाते हैं, कोई मसला नहीं। बस इंशाल्लाह सर, आपके होते हुए टेंशन भी नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, दूसरा किसका सवाल है? प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। शिव सर, र्यून के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसका चार्ट्स पे कि क्या पोजीशन लग रही है आपको र्यून की। थैंक यू। अच्छा जी, रून का, रून यूएसडीटी, रून actually is lying on a support. It it was, the move was trying to make a head and shoulders pattern, inverse head and shoulder, but it kind of failed in there. You can see here the shoulder, the head, and it's had to go up, but it kind of failed here. So it's still in making of. It's pretty much like lying on the support at the moment. Just gonna check the Fibonacci. You can see the 0.5 pending was due here, so it was completed at here $1.7. And if you're gonna go up, it's 786. So if the rune gonna lose this support, this is a minor rising support at 1.748, then 1.761, then second would be around again 1.761. If it's gonna like lose that, so there's a high chance of retesting this level. Where's the 1.644? That would be the next level to test, right? ठीक है जी, ये होगा, ये अगर ये सपोर्ट इसके लूज कर जाता है तो 1.644 इसका लेवल है। ठीक, अच्छा। somebody is asking, sir, initially किन indicators पे grip करें? Indicators की बात है तो you can use the moving averages, you can use the RSI, stochastic RSI preferably, and you can use the MACD. So these three indicators are pretty good to like give you the insight where the market is heading, what's going to happen in the price, and it will going to translate you the next move in that current time frame. But when you start to grasp the market movement, when it starts to resonate in you, and then you move towards a tool like Fibonacci retracements, channels, and levels and other stuff. So MACD, stochastic RSI, and moving averages is like pretty good indicators to start with. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शोएब भाई, ये इम्बैलेंसेस कैसे फाइंड करते हैं? सॉरी, किसका? इम्बैलेंसेस, ये
चार्ट्स में? इम्बैलेंसेस के बारे में, अच्छा इम्बैलेंसेस आपको दिखा देते हैं। इम्बैलेंसेस इनको कहते हैं कि जब मैं बीटीसी पे दिखा देता हूँ, वो अभी एक नया नया बना हुआ है ना, वो ज्यादा क्लियर है। इम्बैलेंसेस जो है इसको कहते हैं बेसिकली कि एक आपकी मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है, like it's an hourly chart and you see the price shot up in an impulsive move in this hour, right? And then in second hour जो इसकी लोअर पॉइंट बना वो ये वाला बना, ठीक है, दिस वन। अब इस नेक्स्ट जो आपकी प्रीसीडिंग जो कैंडल होती है, इससे जो प्रीवियस कैंडल है इसका टॉप, ये बैलेंस है बेसिकली, बिकॉज द प्राइस डिडंट रीटेस्टेड इट। पहले यहाँ थी, इम्पल्स मूव ऊपर की तरफ गई, जो नेक्स्ट कैंडल आई वो इस समझ आ तरफ रही आई। सो ये जो नीचे की एक आपकी पोजीशन रही, ये जो है इसने टेस्ट नहीं किया, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। एंड देन व्हाट हैपेंड कि आप इसको रिफाइन अगर करें, आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो यू कैन सी एक्चुअल इम्बैलेंस स्टार्टेड नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम हियर, and 15 minute is technically at the lowest level that you can go with, and you can see the market tends to move again in this imbalance, and then it retested all the, you know, by body and by wick perfectly in like coming candles and coming time frame. So this is basically the imbalances. A lot of people also say the name is the fair value gap, but I believe fair value है। gap जो होता है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट एक होता है इम्बैलेंस के हवाले से। इम्बैलेंस बेसिकली आता है प्राइस में वॉल्यूम के हवाले से, कि या जब आपको जो ग्राफिकल इम्बैलेंस जो दिख रहा होता है, ये ग्राफिकल इम्बैलेंस है कि मुझे कैंडल की बॉडी से जो है विजुअली ये चीज दिख रही है। फेयर वैल्यू गैप इज समथिंग के उसमें ज्यादातर जो है ना, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 मिनट के या 30 सेकेंड्स के, तो उसमें कैंडल स्टिक जो होती हैं वो इवन स्किप कर जाती हैं। तो the fair value that should be there is being gapped. There's a void in there. There's the absence of like buying and selling, and just price really shot up through the roof. तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन 19-20 तकरीबन चीजें यही हैं। तो कुछ लोग इसको टेक्निकली एफवीजी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, बट मैं इसको ग्राफिकल इम्बैलेंस कहता हूँ, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक मेरे टर्म्स में जो है वो दूसरी चीज है। सो इट इज व्हाट इट इज, राइट। अच्छा अच्छा, उसके बाद किसी ने पूछा कॉम्प एंड एटम के बाइंग जोन बताते हैं। एटम का कॉम्प का दोनों का तो बताया हुआ है मैंने, नहीं बता रहा क्या। अभी तो ये रेजिस्टेंस है, ये रिजेक्ट हुआ था 8.7 और 9.68 की जो बताई थी। मेरे ख्याल से मैंने बताया है एटम का, नहीं बता रहा। अच्छा जी, फाइव के लेवल्स में आपका बेसिकली एटम का होगा। मैं कोई पर्टिकुलर डॉलर वैल्यू नहीं बता रहा, बट ये कि अराउंड $5 जो है आप उसको बाय कर सकते हैं एटम को, ठीक है। एंड कॉम की आई थिंक रेंज, I deleted the TAs or what happened? There was a the buying range for comp is it will gonna come down, it will gonna correct itself. So the buying range would be at this level. This is your buying range. This one, 35.70. This, and if you got lucky, you can also buy it at here, 29. So 35 to $29. This is your buying zone, right? Okay, so what's the next question? Sir, you mentioned dark wine, which is an accumulation zone and currently holding pretty well between 27 to 28 cents. Is it the right time to enter and start DCA? You don't have to DCA in dark wine. You just have to buy at the points that I've given you, and you just have to put at by maximum 1 to 2% of the portfolio. That's it. Do not DCA it and just leave it for like
couple of months. जी कोई साहब पूछ रहे थे अभी सवाल, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद साहब। शोएब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है। शोएब भाई मैं आपको ना 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपके प्रीमियम ग्रुप में मैंने तकरीबन 2 दिन पहले अभी ज्वाइन किया मैंने। तो मैं ये एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं तकरीबन 1 साल से ना ये जो है ना MACD और RSI से ना मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तकरीबन 1 मिनट के चार्ट के ऊपर या 3 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो मेरी ऑलमोस्ट जो सक्सेस रेशियो आज से पहले जो थी, मतलब आज से कुछ मंथ पहले की थी, वो तकरीबन 75% थी रेशो मेरी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा ऐसा क्या हुआ है कि मेरी जो वो जो गैस होता था इसको स्कैल्प को लेके, मेरी पहले ऑलमोस्ट 80% तक थी। तकरीबन पिछले साल मार्च के अंदर मेरी 80% तक जाती थी, लेकिन ऐसे ऐसे मेरी प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग होती जा रही है। मतलब मेरी अब 50% भी नहीं जाती है उसके ऊपर। ये मार्केट क्या ऐसा ऐसा कोई स्ट्रेटेजी जो है वो उसके ऊपर ज्यादा लोग आ जाते हैं, इस वजह से वो फेल होना शुरू हो जाती है? क्या होता क्या है? और ये इतना, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, बस लास्ट है। आप जब पहले बेसिकली जब आप 5 से 6 महीने पहले की जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल भी थी और मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक अब हो गया। बात कर रहे हैं दिसंबर से लेके इस करंट जुलाई तक, मार्केट इज इन द साइडवेज एंड मार्केट इज इन बेयर मार्केट. So in bear market, the indicators fail like the house of cards. किसी भी अभी कॉइन का नाम ले चले उस पर टेस्ट करते हैं, कौन से पे चेक करूं बताएं, आप बताएं किस पे करते हैं? मैं आमतौर पर जब वोलेटाइल ज्यादा होता है तो मैं शिप के ऊपर करता था पहले। जब ये तकरीबन आज से तकरीबन 6 मंथ पहले मैं शिप के ऊपर करता था मैं ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल था उस टाइम। और आप पे क्या होता है? टाइम फ्रेम 1 मिनट होता था मेरा या 3 मिनट होता था मैक्स। इसी के ऊपर स्कैल्प करता था मैं। आप बहुत एग्रेसिव इस पे जो है कर रहे हैं। शिप कॉइन में तो खैर इतनी वॉल्यूम वगैरह भी इतना वो नहीं है। यू कैन सी द स्क्वायर कैंडल्स है। समझाने के लिए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं विन के ऊपर करता था। उस टाइम विन के ऊपर जो था ना काफी वोलेटिलिटी थी उस टाइम भी। तो उस टाइम मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं मेरे जो है ना, आप जब भी यूज करें तो पहली चीज ये कि कोई भी इंडिकेटर कभी भी जो है मिनट के चार्ट्स पे यूज ना करें, 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, बिकॉज इसमें जो है ना बहुत ज्यादा नॉइज होती है और आपको पता नहीं लगता कि बिगर पिक्चर क्या है। मैं 1 मिनट के चार्ट पर अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की कंडीशन चल रही है, लेकिन यहाँ तक आया मैं और यहाँ पे इसने मुझे रगड़ा दे दिया। मतलब ये मुझे एक दिन की भी पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहा, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो आई नो द ट्रेंड्स हैपनिंग है। तो आई नो जब ये विक पड़ी है तो इसकी वजह क्या थी प्राइस एक्शन में, राइट? सो लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं कि बेसिकली पीछे से चलते हुए आते हैं थोड़ा, ताकि हम आगे की मूव को जो है वो देख सकें कि प्राइस एक्शन में हम उसको किस तरीके से जज कर सकते हैं। I'm gonna color it black so you can see the charts here. Okay. कहीं से भी मुझे बता दें, चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? दिस इज आवर लिक्विडिटी साइड। यहाँ पे बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर जो है रेजिस्टेंस की तरफ नीचे गया, ये इसने 1-on-1 करेक्शन करी। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बट यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोज व्हाट हैपेंड इन हियर। तो यहाँ पे मुझे एक कैंडल ने बताया, आई एम नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू के एग्जांपल के मार्केट में चल क्या रहा है। बेसिकली 222 का लेवल जो था वो मुझे अंदाजन पता था कि यहाँ से रिजेक्शन मिलनी है, बिकॉज यहाँ पे एक कहीं ना कहीं स्विंग फेलियर पैटर्न जैसी एक चीज बनी है, ठीक है? यू कैन सी पहले भी 221 या 222 ऑलमोस्ट 221.9 पे जो है रिजेक्शन मिली थी, हम नीचे गए थे, इट गॉट बैक अप अगेन, इसने यहाँ से फिर रिजेक्शन ली। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब एक ये बड़ी बुलिश वो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, दैट मींस के नाउ आवर ट्रेंड इज बीइंग कमिंग डाउन। मेरा सबसे पहला लेवल क्या होगा टेस्टिंग का? ये वाला, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड हियर कि एक बड़ी कैंडल बनी थी और नेक्स्ट दोबारा इसने बड़ी कैंडल 15 मिनट की बनाई और फिर इसने स्विंग करके यहाँ से ली। नाउ यू कैन स्टार्ट द पिक्चर स्टार्ट्स टू फॉर्म कि ये एसएफपी प्ले आउट हुआ यहाँ पे जिसने लॉन्ग करी थी उसका हंट करने यहाँ पे आया, एसएफपी इसने प्ले किया बिल्कुल विक पे, लिटरल सेंट्स का भी फर्क नहीं है, ठीक है? इट गॉट बैक अप अगेन, आपने यहाँ से रिजेक्शन ली एंड देन थोड़ा सा नीचे आए, एक और एसएफपी प्ले किया यहाँ पे, एंड देन इस जैसे ही आपने इस कैंडल को तोड़ा, यू जस्ट स्टार्ट ब्लीडिंग टुवर्ड्स दैट, राइट? यहाँ पे आपका क्या बना है? दिस इज योर इम्बैलेंस क्रिएटेड, ठीक है? दैट्स योर इम्बैलेंस, ठीक है? अभी जिस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये मेरा एक इम्बैलेंस भर गया और मैं नीचे जाता जाता आया यहाँ पे until the market stabilizes.
मेरी मार्केट यहाँ पे स्टेबल होती है, ठीक है, इस विक पे यहाँ पे मैंने देखा ठीक है मार्केट स्टेबल हो रही है, चलो इस कैंडल पे नहीं, मैंने इस कैंडल पे लॉन्ग करना शुरू किया। मेरा पहला टारगेट क्या है, ये इम्बैलेंस है, राइट। मैं इस इम्बैलेंस की तरफ जाऊंगा, एक दोबारा छोटा सा ऐसे फिप ले हुआ एंड देन ऊपर में जाता गया जाता गया जाता गया, ये मैंने हाफ इम्बैलेंस जो है ये मैंने कवर कर लिया। यू कैन सी हियर, ये जो इसकी बॉडी जो बनी है ये इस इम्बैलेंस का हाफ है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि आप जो इसको देख सकें। ये देखें, सॉरी ज्यादा ही डार्क हो गया। ये देखें, ये इसकी हाफ पोजीशन है जो इसने बिल्कुल इसने यहाँ पे विक में उठाई, ये वाली। इट्स परफेक्टली द हाफ इम्बैलेंस, यहाँ पे इसने पुश कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे होके देखता हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन इस टाइम पे नहीं जाएगी। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वी आर मेकिंग अ बेरिश हार्मोनिक हियर, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आएगा डी पे। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है इसने आगे बी को रिक्लेम करना है। पहले विक से करेगा, ये विक से क्लेम हुआ, फिर ये बॉडी से करेगा आगे आगे। इसने बॉडी से रिक्लेम किया एंड देन जब इसने यहाँ पे एक तरीके से हिडन ऐसे फिप ले आउट कर लिया, मार्केट वेंट ऑल द वे अप फ्रॉम अवर फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट, फिर ऊपर गई, इस वाले इम्बैलेंस को फिल कर किया विक में हाफ। ये वाला जो इम्बैलेंस आपका था हेयर, इस वाले इम्बैलेंस को हाफ फिल किया एंड देन अगेन केम बैक डाउन हियर। तो प्राइस एक्शन बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा है आपका। आप दुनिया का कोई भी इसमें इंडिकेटर लगा लें, आप नहीं चल सकते इसमें, ये आपको मार्केट इंडिकेटर पे अभी चलने ही नहीं देगी। ये अनफॉर्चुनेट एक वो आ रहा है। अगर आपने इंडिकेटर पे चलना है तो आप थोड़े हायर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। यू हैव टू वर्क ऑन लाइक एन आवर एंड 4 आवर चार्ट जिसमें नॉइज कम है, जिसमें मामला थोड़ा कम है, तो उसमें आप देखते हैं 15 मिनट का चार्ट तो खैर मैं देखता भी नहीं हूँ। मैं यूजुअली यूज करता हूँ बाय मिनिमम 45 मिनट्स का मैं चार्ट यूज करता हूँ, या 1 आवर या 4 आवर। तो वहां पे जो ये सिचुएशन इसकी वो होती है। तो अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस बेसिकली इंडिकेटर से पहले जो है ना, क्योंकि देखें लेट सपोज के यहाँ पे मैकडी आपका, लेट सपोज ये आपका मैकडी चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये मैकडी चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये इसने यहाँ से क्रॉस ओवर किया, राइट। प्राइस आपकी यहाँ से ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है इस जगह पे। अब यहाँ से जब ये चलता हुआ जा रहा है तो बेसिकली ये क्रॉस ओवर जो करेगा ना, ये क्रॉस ओवर आके कहीं यहाँ पे करेगा जी, इस जगह पे। लेकिन इधर तक तो बहुत देर हो चुकी है इस जगह तक, कि जब आपको सेल का सिग्नल आ रहा है तो आप तो ऑलरेडी यहाँ खड़े हो, आपको तो यहाँ सेल करना था, राइट। ऐसा ही होता है ना, डिले ऐसा करता ही है ना होता वो आपको। मतलब उसने आपकी 3% की मूव मिस करा दी, कोई 12 या 13 घंटे बाद आपको आगे सिग्नल दे रहा आवरली चार्ट पे कि यार अब सेल कर दो। तो उधर भी आपको प्राइस एक्शन का देखना पड़ता है कि ठीक है आपने बाय सिग्नल ले लिया, यू जस्ट गॉट द हेल्प विद द मैकडी एंड जो भी आपके ऑसिलेटर्स हैं, लेकिन when the price tends to lose its momentum, when the price tends to lose the flight, this is the time that you should sell. जब ये कैंडल इसकी एक आपकी आई यहाँ पे, तो I'm gonna remove this, ये वाली कैंडल आवरली, जब एक ये इसने बेरिश एनगल्फिंग बनाई तो ऑफ कोर्स ये एकदम तो ऐसे धड़ धड़ करते हुए नहीं गिरेगी, ये आपको थोड़ा सा तो चांस देगी ना ऊपर जाने का। एटलीस्ट आपको ये इम्बैलेंस तक तो दिख रहा है कि चलो इसने एक बेरिश कैंडल बनाई, उसके बाद ये मेरा एक इम्बैलेंस है, ये मेरा एक इम्बैलेंस है, ये वाला, राइट, ये ऊपर, तो आप 239 पे तो निकल सकते हैं ना। इट्स वे बेटर कि जब मैकडी आपको 230 पे निकाल रहा है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन में एंट्री करने के लिए ना आप इन चीजों को समझना शुरू करें। इस चार्ट पे जो है नीचे से ज्यादा जो है थोड़ा ऊपर की तरफ फोकस करना शुरू करें कि कैंडल्स आपसे क्या कह रही हैं, एंड देन इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला यू विल गोना स्टॉप रिलाइंग ऑन द इंडिकेटर्स। आप बस वहां से कॉन्फ्लुएंस लेंगे। इंडिकेटर्स कोई बात बुरी नहीं है ऐसे यूज करना, लेकिन दीज आर जस्ट देयर फॉर द कॉन्फ्लुएंसेस। कॉन्फ्लुएंसेस कहते हैं कि कंफर्मेशन हमें क्या मिल रही है, कि आरएसआई क्या कह रहा है, क्या ओवरसोल्ड हो चुका है, जहां पे कंफ्यूजन हो रही है तो वहां पे क्या चीजें हो चुकी हैं। बिकॉज इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स व्हाइल जस्ट स्ट्रिपिंग एवरीथिंग डाउन फ्रॉम इट, कि बिल्कुल यहाँ से सब चीजें हटा के यहाँ पे इस जगह के आगे बताना कि यहाँ से क्या जा रहा है, 237 पे जाएगा या 226 पे जाएगा, ये चीज बताना जो है ना, ये इसमें टाइम लगता है काफी। तो
start सर working on that. स्कैल्पिंग के लिए कौन सा कैंडल ज्यादा बेस्ट है जो हम यूज करें? मतलब आपने जैसे हमें मार्केट का बता दिया है जी कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ये इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उस दौरान अगर हम करना चाहें तो सर कौन सी कैंडल परफेक्ट जो यूज कर सकते हैं छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए, मतलब 30 मिनट के लिए? कैंडल कैंडल कह रहे हैं आप? जी जी सर, कौन सा मतलब टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? टाइम फ्रेम देखें, एक बात मैं आपको ये ना थोड़ी अजीब सी बताऊं, जो सबसे कॉमन टाइम फ्रेम्स होते हैं ना आपके, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, इन कॉमन टाइम फ्रेम्स में ही सबसे ज्यादा ऐसे प्ले आउट होता है। ठीक है, एक टाइम फ्रेम में जितना आप यहां से वहां फिरोगे ना, आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। हमेशा एक बात आप याद रखो, आपने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, आपने एक टाइम फ्रेम पे रख के फॉलो करना है। ठीक है, अगर कोई 15 मिनट के चार्ट पे कह रहा है तो मैं अचानक ये नहीं कहूंगा कि नहीं 15 मिनट का चार्ट छोड़ के अचानक से आ जाओ 45 पे आ जाओ, 1 घंटे पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसको उस जोन की आदत है कि 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, वो अपना रिस्क एपिटाइट जो है वो उस हिसाब से बैलेंस किया हुआ है कि 4 कैंडल के हवाले से वो 1 घंटे की मूव जो है वो 4 कैंडल्स में देख रहा है। अब मैं उसको एकदम से एक जगह पे ले आऊं जहां पे 4 घंटे की मूव एक कैंडल पे आ रही है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ठीक है, उसको आदत है इस पूरे टाइम फ्रेम को देखने की कि कैंडल कैसे जा रही है, क्या मामला हो रहा है, क्या मैकडी, क्या मूविंग एवरेज करे, और मैं एकदम उसको 4 आवर पे लिया हूं, सो इट विल नॉट गोना वर्क फॉर इट। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं इन चीजों में, तो एक जरा सा नजर मारना शुरू करें 30 मिनट्स के चार्ट पे। सबसे पहले थोड़ा सा ऑड टाइम फ्रेम है, लेकिन इट्स नॉट कॉमन। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है ना कुछ आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या चल रही है, कि मार्केट यहाँ से गिरी है तो ठीक है, हमने यहाँ देखा 30 मिनट पे ये चीज बन रही थी, एक आपकी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बन रही थी, ये मार्केट गई इधर, इम्बैलेंस बना, वापस आई, उसके बाद जो है एक इसने बेरिश हार्मोनिक यहाँ पे बनाया, इसने बी को क्लेम किया, एंड देन साइडवेज 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 चलती रही। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टारगेट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि लाइक वी ऑलरेडी स्टडीड के हमारा नेक्स्ट टारगेट 207 है, एंड देन उसके बाद 205 है, अभी 215 पे खड़ा हुआ है। कोई ट्रेड कॉल नहीं है, बट जस्ट गिव यू द एग्जांपल कि ये इस तरीके से जो है आपकी चीज चल सकती है, और उसको थोड़ा फोकस करेंगे तो नॉइज भी इसमें कम है, अच्छा टाइम फ्रेम भी है, और एक आपको ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का पता लग सकता है। ठीक है, सो 30 मिनट से आप लोग स्टार्ट करें, एंड इंशाल्लाह ताला आई होप कि इट विल गोना हेल्प यू मैसिवली योर। लास्ट कंफ्यूजन है सर, ये 30 मिनट्स का जो आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्कैल्प स्टार्ट करता हूँ जी इसी पे BNB पे के आने तक 207 तक ये आ सकता है, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितने टाइम तक आ सकता है? ये अभी आपका मैटर नहीं है। टाइम जोन में अभी कूदना जो है ना, इट्स नॉट इजी, बिकॉज उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको बहुत एक कॉइन पे जो है ना सालों लगाने पड़ते हैं कि उसकी मूव क्या है, वो कितने टाइम साइडवेज रहता है, वो कितने टाइम में गिरता है, उसकी उसकी बेसिकली बाउंसिंग कैपेसिटी क्या होती है, किस प्राइस पे उसका वो मामला चल रहा नहीं, है, किसी स्कैल्प में बात कर रहा हूँ कि ये थोड़े से टाइम फ्रेम नहीं, से हमें कैसे? इट्स नॉट समथिंग के कोई सीक्रेट कोई कोड है कि नहीं ये 45 मिनट में नीचे आ जाएगा, ये 2 घंटे में नीचे आ जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस स्कैल्पिंग के लिए आपने ये करना होता है बेसिकली कि आप इम्पल्सिव मूव देखते हैं। अब यहाँ पे जब आपको पता है कि इसने यहाँ पे एनर्जी लूज करना शुरू करी है, तो यू नो कि इसने ये बैलेंस फिल करने नीचे आना ही है। जी सर। स्टार्ट ओपनिंग शॉर्ट है यार, लेकिन शॉर्ट भी अगर ओपन करी तो ऐसा नहीं है कि आपने लिक्विडिटी बिल्कुल यहाँ मुंह पे रखी हुई है। जो लोग बिल्कुल ऑल इन गो कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने लिक्विडिटी फिर भी जो है बहुत ऊपर रखनी है, आपने एसएल वगैरह थोड़ा मैनुअल मूव करना है उसमें। तो इट इट डिफर्स, आने को चीज जल्दी भी आ जाए, आने को थोड़ी टाइम भी लगा है, बट यू हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस कि आपकी कॉन्फिडेंस क्या, उस पर कितना कॉन्फिडेंट है कि वो चीज आएगी नहीं आएगी, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड अदर क्वेश्चंस, हसन साहब जी पूछ लें, क्या आपका सवाल है? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने पिछले दिनों SFP के सेक्शन में कुछ चार्ट डाले थे जिसमें हार्मोनिक था, और FIB के मैंने वो बनाए थे। उसको क्या कहते हैं? हार्मोनिक है ना, दूसरा वो कहते हैं FIB को क्या कहते हैं? FIB, अच्छा फिबोनाची। फिबोनाची सर, वो मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं और 4 चार्ट मैंने उस पर पोस्ट किए हैं। तो सेठ सर ने उस पर मेरे ख्याल में सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो उसको नहीं समझते, क्योंकि आपने वो पैटर्न सिखाए थे।
तो पूछ रहे थे कि क्या पूछना चाह रहे हो, तो मैं ये पूछ रहा था कि मैंने सही बनाया क्योंकि उसने वापस 0.5 को आगे टच किया है, एक दिन बाद किया है, 1 घंटे का चार्ट था और 4 घंटे का चार्ट था। अगर प्लीज आप उसको देख लें और एक दफा उससे आप बता दें कि वो मैंने सही ड्रॉ किए थे कि नहीं। ये वाला एक आपका था। नहीं सर, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, ऊपर है थोड़ा सा। ये 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 देखें, उस पे भी बना है, ऊपर पे भी बना है, और मैंने इसके साथ टैग भी किया कि हिट किया इसने। 0.1 आपका। हाँ तो ठीक है ना, ये 0.5 आपका रिक्लेम हो गया यहाँ पे, इट्स फाइन। और ये मैं पेपर वर्क किया था ना, ये मैंने इस तरह सोल पे भी किया था, ये भी मेरे सही भी है, बनाया था। ये बुलिश हाँ हार्मोनिक ये भी क्योंकि ये आपका वैलिड है, क्योंकि 0.5 और 318 ये 618 के दरमियान बी पॉइंट बना, सी पॉइंट बना, डी तक आपकी एक्सटेंशन आई 876 परफेक्ट है, तो इसने रिक्लेम में जाके बी को किया है, ये भी सही है। और मैंने इसके साथ टैग भी किए हैं ऊपर, इससे पहले भी मैंने पोस्ट किए हाँ, थे, ये मैंने तस्वीरें असल में आपने देखी देखी हैं? नहीं है, मैं अभी मैंने खोला है तो मैंने इसमें देखी भी नहीं है चीजें। एक्स ए बी बी सी डी, ये हार्मोनिक ये वही वाला है जो आगे आपने देखा है, सही है। बी वाला सही, बी बस ये देखना होता है आपने कि जब आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो ये पहले आप इधर रख के करोगे ए पे, और आपने ये देखना है कि ये कम से कम 0 पॉइंट जो बी पॉइंट होता है वो 0.5 और 382 के दरमियान है। अगर वो इससे ऊपर आ रहा है तो इट जस्ट गोना प्ले अ डबल टॉप, ये आपका हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स फाइन, अच्छी प्रोग्रेस है आपकी, तो कोई तो वो इसको मैं वो पेपर वर्क कर रहा था ना, तो मैं भी इस पे ट्रेड ले सकता, मैं खाली कंफर्म कर रहा था ना, ट्रेड सर को लें, मैंने पोस्ट भी ट्रेड किया लें, था। लेकिन ये कि बहुत कम अमाउंट में जस्ट टेस्टिंग के लिए लें ट्रेड्स, कि आपकी 5 या 6 या 7 डॉलर की जस्ट टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे कॉइन्स वगैरह पे करें, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराएगी एक चीज, और आहिस्ता आहिस्ता चलें, एकदम जंप आउट मत करें पोर्टफोलियो को लेके पूरा। तो मैं भी जब उस पर देखता हूँ एनालिसिस अपने कर रहा होता हूँ, जब मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स लगाता हूँ, तो मैं कभी भी रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपना 3% से ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं लगाता। बेशक मुझे आंखें बंद करके पता है कि अगर मुझे कि यहाँ से चीज गिरनी है, क्या होना है, तो रैशनली चलना होता है, टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखें, लेकिन पोर्टफोलियो आपका है, ठीक है। तो आपने अकलमंदी वहां करनी है जहां पे आपका रिस्क आपके हाथ में है, वहां पे आपने देखना है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपका पोर्टफोलियो है, तो वो आप अपनी अकलमंदी से लगाएं। 5 या 3 या 4% मैक्सिमम, मैक्सिमम, हद से ज्यादा एक ट्रेड में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई किसी का सवाल है प्लीज। जी टर्किन को आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस रिकॉर्डेड सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आदिल बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं शोएब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले सोची थी कि आपसे पूछूंगा वो ऑलरेडी माशाल्लाह मेरे भाइयों ने सबने पूछ ली है, तो मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि स्कैल्पिंग से रिलेटेड से मैं यानी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि इसमें टाइम फ्रेम कौन सा वाला यानी बेस्ट है। मैं एक्चुअली शुरू से ही पहले दिन से ही जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ। सही। तो उसमें एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, दूसरा मेरा क्वेश्चन था शोएब भाई कि ये जो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं बनाया था, तो जी अभी मैंने जब बनाया ना तो उसमें वो लिमिटेशंस बाइनेंस वाला बता रहा है कि आप 6 मंथ से पहले लेवरेजेस वगैरह को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, यानी 20 जो है ना उससे अबव नहीं जा सकते। तो बात मैंने ये जानना था कि अगर मैं किसी दूसरे एक्सचेंज पे अगर बनाऊं कू कोइन या कोई भी आप अगर मुझे प्रेफर करें, तो उस पे भी यही सेम सिचुएशन होगी या उधर फ्यूचर्स की मुझे यानी लिमिटेशंस नहीं मिलेंगी? होता, लिमिटेशंस क्यू कॉइन पे नहीं होती, तो वहां पे देख लें। अगर आपको फीस से भी बचना है तो मेरा वाला रेफरल लिंक यूज कर लीजिएगा, तो 50% फीस वगैरह भी आपकी नहीं कटेगी उसमें। तो क्यू कॉइन पे देख लें, लेकिन लेवरेजेस आप हाई करना क्यों चाह रहे हैं, क्या वजह है उसकी? नहीं जस्ट मैं तो लिमिटेशन, मुझे तो अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो रिस्क नहीं ले रहा। 10 लेवरेज पे ही यानी 10 या 20 लेवरेज को यूज कर रहा हूँ स्कैल्पिंग में। क्यू तो मैं वैसे ही यानी वो कह रहा था ना कि 6 मंथ्स के लिए आपको यानी वो 6 मंथ असल के में बाद नए ये अकाउंट्स के लिए करते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी, अच्छी बात है, एक्सचेंजेस की तरफ से भी जो है ये एक अच्छी बात है। तो आप क्यू कॉइन बेशक यूज कर लें, तो उसमें कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं होती, लेकिन उसमें इफ आई रिमेम्बर बीटीसी का भी जो है ना 125x नहीं मिलता, 100x मिलता है, तो बाकी सबके सेम ही होते हैं एवरेजेस, तो वो देख लें बेशक अगर करना चाहें। और बाकी इंडिकेटर्स आपके जो वीडियोस में एनेबलर पे देख रहा था तब तो अब तो वो से रिमूव हो गए हैं।
तो इंडिकेटर्स कौन से स्कैल्पिंग के लिए, यानी हमें वैसे तो आप बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अभी तो वो काफी टाइम लग जाएगा हमें सीखने में, लेकिन बेसिकली मैं स्कैल्प जी आप MACD यूज कर लें, स्टोकेस्टिक RSI यूज कर लें और मूविंग एवरेजेस यूज कर लें 10, 29 और 10, 25 और 99 वाला, और 30 मिनट्स का आप चार्ट यूज करेंगे तो वो एक आपको अच्छी एक एनालिसिस दे देगा और अच्छी ये के मतलब ये के नॉइस कैंसिलेशन कर देगा चार्ट में। जी मैं ऑलरेडी आपकी वो 10, 25 और 99 वाला मूविंग एवरेजेस ट्रिपल एम यूज कर रहा हूँ, और RSI जब ओवरसोल्ड मार्केट हो जाती है तो मैं नोटिस करता हूँ, पहले तो मैं ट्रेड नहीं लेता, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं 2-4 बार जब पीछे देखता हूँ ना सारे चार्ट को, तो RSI जहाँ पे भी ओवरसोल्ड होता है ना, तो उसके बाद वो मार्केट पंप करती है ऊपर को। हाँ, तो वो यही होता है कि SFP ऐसे ही प्ले किया जाता है क्योंकि 90% ऑफ द पीपल यूज द RSI। और अभी तो शर्म की बात ये है कि बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं हमारे, कुछ बाहर के मुल्क के, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि वो इंडिकेटर्स को दिखा के एनालिसिस दे रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप इंडिकेटर की बेस पे लोगों को कैसे बता सकता है। मतलब इट्स टोटली फाइन के वट एवर मेक्स यू लाइक फ्लोट योर बोट वाली बात है कि अगर आपके लिए कोई चीज काम कर रही है, टोटली फाइन। लेकिन when you are conveying the message, when people are following you, when people are looking at you like the source of information, and जब आप उधर लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं बताने के लिए, तो काफी एक हैरानकुन एक बात होती है। तो आप खैर अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज कर लें, तो नहीं है 30 मिनट्स का चार्ट आप देख लीजिएगा उस पर। अगर कोई कंफ्यूजन होती है, कोई लैगिंग में मसला आता है कि इंडिकेटर में ऐसा क्यों बाद में हुआ जबकि मार्केट पंप हो गई, तो ऑन द चार्ट में जो है मैं आपको उसकी रीजनिंग कर दूंगा कि उसके पंप होने की वजह क्या थी। फॉर सपोज एक मिसाल के तौर पर अभी एक सामने एक चीज रखी हुई है, तो पता लग रहा है कि ये वाली जो विक है इसकी रीजन क्या है पड़ने का ऊपर, क्या ये लिक्विडेटिंग विक थी? वो इसलिए बेसिकली थी कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि एक आपकी राइजिंग वेज ऊपर जो है बनती हुई गई थी यहाँ पर, ठीक है, राइजिंग वेज या राइजिंग सपोर्ट आपकी यहाँ पे बनती हुई गई थी, और इधर से जो इसने एक लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, तो यहाँ से इसने लॉन्ग्स को ट्रैप किया हुआ था। स्टैक इम्बैलेंस इसको कहते हैं, मैंने प्रीवियस जो है उस पर वो बताई हुई है, एक अपने मेंटोरिंग सेशन में एक बात बताई हुई है। तो ये स्टैक आपका इम्बैलेंस यहाँ पे था जहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैप हुए हुए थे, तो एकदम से कैंडल नीचे आई, ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं थी इसकी, ये 30 मिनट के चार्ट में जैसे वो ऊपर चढ़ी ऐसे नीचे आ गई, तो मार्केट चलती रही चलती रही चलती रही ऊपर गई। यहाँ पे आप इसके करेक्शन देखें, इट्स अ फाइन करेक्शन के इसने 0.5 को रीटेस्ट करने की बजाय ये सबसे पहले ऊपर गई, एक विक में पहले इसने यहाँ पे रीटेस्टिंग करी, इस वाली जोन को पूरा किया, एंड देन दोबारा इसने ऊपर इन लॉन्ग्स को निकाला ब्रेक इवन पे जो कि यहाँ पे स्टक थे। और यू कैन सी के तो माशाल्लाह कलर बार बार चेंज करने पड़ता है। यू कैन सी कि अगर मैं इसकी बॉडी पे रखूं तो ये विक पे ये क्यों यहाँ पे पड़ी है चीज, 1087 पे जो लॉन्ग स्ट्रैप थे वो निकल गया आपके सारे। तो दैट वाज द बेसिक रीजन कि यहाँ पे क्या था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा डीसी का एक पॉइंट था यहाँ पे जो कि फेल हुआ, 1088 पे था तो क्यू कॉइन पे, तो ये एक मामला इसका था। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, एंड चार्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि सरप्राइजिंग कुछ भी हो, हर चीज का पीछे रीजन होता है और कोई स्पेकुलेशन इस चीज में नहीं होती। प्लीज इस चीज को समझें, अभी भी दिल बर्दाश्त ना हो। एनालिस्ट जो होते हैं वो अक्सर नए नए जब स्टार्ट होते हैं 5 या 6 महीने या 1 साल में, तो जब चीज उनके अगेंस्ट में जाती है तो वो उसमें दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार ये तो मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में। मैनिपुलेशन नहीं हो रही, मे बी यू नॉट लुकिंग डीप इनफ, शायद अभी आपका इल्म थोड़ा महदूद है उस चीज में, आपको वो चीज नहीं दिख रही, तो इट्स टोटली फाइन। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी की कोई इज्जत कम हो गई या किसी का कोई इल्म, कोई कोई मेहनत उसकी जो है किसी काम में नहीं आई। इट्स टोटली फाइन, इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। हम भी इसी तरीके से यहाँ से सीखते सीखते आए, तो एक टाइम आता है कि फिर आपको पता लग जाता है व्हेन यू लुक बैक कि अच्छा यार ये हो रहा था, ये शायद मैंने दैट टाइमली नहीं देखा था और ये मामला था। तो पहले बेसिकली मेरी जो एंट्री थी वो तकरीबन 50 में थी, 1050 पे, एंड देन उसके बाद मेरी एंट्री का जो मतलब ये था पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया था, इसके बाद 70s पे आ गया था डीसीए करने के बाद। तो इट्स टोटली फाइन, मैं चल रहा हूँ, मेरी अच्छी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। तो आपको आपकी नॉलेज जो है ना सुकून देगी, कोई इंडिकेटर कोई सुकून नहीं देगा, कोई भी बंदा आके सुकून नहीं देगा। मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माइलस्टोन हूँ कि लोग समझते हैं कि लाइक आई जस्ट वांट बी विद यू, आई जस्ट वांट बी लाइक यू। इट्स टोटली फाइन, यू विल गोना बी बेटर देन मी इंशाल्लाह। जो जहां मुझे 10 साल लगे शायद आप लोगों को 5 या 4 महीने लगे उसमें बनने में,
वो चीज हो जाएगी। जी कोई वो तो जाहिर बात है कि आप एफर्ट पुट करेंगे तो इंशाल्लाह हार्ड वर्क तो श्योर रिवार्ड मिलता है। लाइक कभी भी कुछ हो तो आप कोशिश करेंगे, स्पेशली जो लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं चीज को, जो चीज दिल से सीखना चाहते हैं, बिकॉज ये इट्स लाइक एन एडिक्शन दैट कांट बी फिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए एक ये चीज है कि मैं इस मार्केट को छोड़ ही नहीं सकता, कि बस जाना है रोज एक ना एक नजर जरूर मारनी है। तो अगर आप उसको छोड़ देते ना 3 या 4 दिन, तो आपका बड़ा लॉस हो जाता है। फिर आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है, आपको सारी स्टडी करनी पड़ती है पीछे से जाके दोबारा, होमवर्क की तरह कि यार यहाँ से ये मार्केट नीचे गिरी थी, यहाँ पे मैंने छोड़ी थी, अब ये इधर मूवमेंट क्या हुई, इसके बाद आगे क्या होने वाली है, क्या मामला चल रहा है। तो इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक दिस। अभी जैसे स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में जो मैंने बात है कही थी आप लोगों को कि यहाँ से शॉर्ट खुलना शुरू होंगे, ये लेवल था। अब ये क्या हुआ है कि ये लेवल अभी रीटेस्ट हुआ दोबारा, ये जो लाइन बनाई थी स्टार्ट में, लिटरली इस वीडियो के स्टार्ट में 1 घंटे पहले, एंड यू कैन सी के वही मैंने बात की थी कि ये पहले आएंगे, इट इट विल गोना स्वीप द हाइस फर्स्ट, फिर इस लेवल को नीचे तोड़ के जाएंगे। एंड देन इसने भी यहाँ पे टेस्ट किया, जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट खोली होंगी ये भी रगड़ गया होगा यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये आपका वही वाला लेवल आ गया है। देख लें 19143, और ये 19,000 पे ऑलरेडी बीटीसी आ चुका है। कितना दूर है? $140 ही दूर है से। तो शोएब भाई देखें, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता था कि जो मैं करता हूँ, यानी मैं आरएसआई को यूज करते हुए 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं एक्चुअली जब मार्केट जो ओवरसोल्ड, जी हाँ, ओवरसोल्ड के बाद तो नीचे आती ना, ओवरसोल्ड हो जाती है तो नीचे आरएसआई जब दिखाता है ना, होता तो है मैं मार्केट नीचे, जी आरएसआई जी नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है, आरएसआई जब ऊपर होता है तो ओवरबॉट होता है। जब जी ओवरबॉट जी होता है जी तो मार्केट जाती है, जब ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट ऊपर जी जाती जी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो वो मैं जब आरएसआई से एंट्री लेता हूँ एक्चुअली, तो उसमें मैं ज्यादातर मैं लॉन्ग ही खोलता हूँ, यानी जो है ना अपनी ट्रेड। तो वो मैं देखता हूँ कि वो इंस्टेंटली ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत जो मार्जिन लेवरेजेस मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि अगर 10% भी मुझे मिल जाए तो है। मैं उधर ही अपनी यानी उस पोजीशन को, यानी स्काल्पिंग करने का मेथड यही होना चाहिए ना वैसे आपका। मैं यानी आपसे एक इस राय ले रहा हूँ आपकी। ये देखें, स्काल्पिंग के लिए आपका एक अगर परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे ना तो हमेशा मुश्किल में रहेंगे कि वो टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है, आप उसमें कंफ्यूज रहोगे। स्काल्पिंग के लिए यू हैव टू डिसाइड कि कुछ दिन होते हैं कि आपको 8 या 10% की मूव मिल जाती है, ठीक है। कुछ दिन होते हैं कि लेट्स से कि अगर ये पूरा आपका दिन है तो वो मुश्किल से आपको 2 या 4% की मूव मिलती है। तो यू हैव टू सी के आज मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का आपको लग रहा है कि यार मैं एंटर हुआ, मैं इधर फंस गया, फिर मैं नीचे आ गया स्पॉट पे, फिर मार्केट ऊपर गई, चलो मैं यहाँ पे निकल गया, उसके बाद मार्केट नीचे गई एंड देन उसके बाद नीचे ही आई है। तो यू हैव टू सी के उस दिन की नौयत के हिसाब से मार्केट ट्रेंड मैंने क्या पकड़ लिया है। अगर मैंने मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया है तो फाइन इनफ, मेरा टारगेट पूरा हो गया। टारगेट कभी भी जो है ना परसेंटेज या डॉलर्स के हिसाब से ना रखें, क्योंकि नहीं नहीं मार्केट आपको जी ओन जी आप कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मैं करें एक्चुअली क्या हर कैंडल जी, जी आप जी करें क्या वन कि वन आवर फ्रेम की शोएब भाई माजरत चाहता हूँ अगर आपको मैं रोक रहा हूँ। कोई 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टिक है, मैं उसकी यानी चेक करता हूँ पैटर्न्स क्या बन रहे हैं और कितनी कितनी परसेंटेज हर कैंडल स्टिक में लॉस में कितनी जा रही है, माइनस में रेड वाली कितनी बन रही है, और जो प्लस में वो मैं चेक करता हूँ। उसके उसके हिसाब से जब मैं देखता हूँ कि एक कैंडलस्टिक में यानी मैक्सिमम आज के दिन में जो परसेंटेज 1 आवर के हिसाब से बन रही है, तो मैं उतना ही टारगेट यानी अपना देख लेता हूँ कि मुझे बस 5% अगर लेवरेज मिल रही है या 10% मिल रही है, जाहिर बात है वो वहां से जब हम लगाते हैं तो वो फ्यूचर्स में तो बेनिफिट यानी ज्यादा हो जाता है ना, स्पॉट में तो कम ही मिलता है। सही है। इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। नहीं सही है, अगर आपको स्ट्रक्चरल वो दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट होने पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। तो वो जरूरी नहीं है वो दिन में पूरा हो। अगर आवरली चार्ट है तो शायद वो अगले दिन जाके पूरा हो, या शायद वो आधे घंटे में भी पूरा हो जाए। तो अगर स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन आपको मिल रही है तो इट्स टोटली फाइन, आप उस पर चल सकते हैं। तो उसका कोई हार्ड जी एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि वो इसी टाइम फ्रेम में पूरा होना चाहिए, इसी परसेंटेज पे पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलें ठीक है। चले। आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। आई थिंक टर्न को कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं शोएब भाई? हेलो, आवाज आ रही है शोएब भाई? आ रही है आवाज आपकी? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, अपना सवाल पूछें।
अच्छा सर भाई, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना था बीच में, इसलिए मैंने सिर्फ हैंड रेज किया था कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन करूंगा। मैं पहले तो इंडिकेटर्स यूज करता था, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने अब छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको ग्रुप ज्वाइन किया है। उसके बाद मैंने काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं और मैं उतनी ही नॉलेज क्रैप कर रहा हूँ। तो पहले उस पर ग्रुप हो तो फिर फर्दर चीजों की रिसर्च की जाए। अभी जैसे फिर आपने SFP का एक स्ट्रेटजी का एक कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट वीकेंड पे, मेरे वीडियो थी उस पर। तो मैं सिर्फ अभी उसी पे क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी फर्दर आपकी कॉस्ट पे ट्रेड ले रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये था कि एक बीच में बात चल रही थी कि जब एक पॉइंट पंप करता है या डंप करता है तो वो पंप और डंप जो है उसके साथ उसके वॉल्यूम को भी एनालाइज किया जाता है कि वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है कि इनकेस वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली वो फेक पंप होगा या फेक डंप होगा। सही है। मैंने ये सिर्फ आपसे भी पूछा था कि यार ये वॉल्यूम को कैसे हम एनालाइज करते हैं, वो टेक्टिक तो उसका एनालिसिस क्या है, वो उसके ऊपर मेरा कोई अभी तक उनके पास शायद हो सकता है, बिल्कुल होगा कि वो बिजी है कि वो टाइम नहीं दे पाए तो उसका आंसर मुझे मिले। तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर, नो डाउट इट इज रेलेवेंट टुडे और नॉट। 1 मिनट मुझे दें, अजान हो जाए मैं फिर आपका जवाब देता हूँ। श्योर। जी, अच्छा, आपका सवाल वॉल्यूम के हवाले से है कि हम वॉल्यूम को किस तरीके से जज करते हैं या उसमें वो होता है। तो दो चीजें समझ लें सबसे इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम और वॉलिटिलिटी में क्या फर्क होता है? वॉल्यूम में फर्क ये है कि वॉलिटिलिटी का ये चक्कर होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है बहुत तेजी से हो रही हैं और वो किसी भी तरफ लेके चली आएगी क्योंकि बायर और सेलर जो है एकदम हाई उसमें एंटर हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। बाय वॉल्यूम जो है वो ग्राफिकल आपको दिखा देता है कि देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये एकदम से मार्केट आपके ऊपर गई, बट दिस इज नॉट वॉलिटिलिटी, this is the low volume move that happened on the end of June. अब इसमें अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो ये मैंने जस्ट फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करी है। इट्स ऑन फ्री ट्रेडिंग व्यू, आप उसमें कर सकते हैं। तो यू कैन सी के जो मेरा एनपीओसी है या पीओसी जो है मेरी, वो स्टिल 1871 पे है एट 18871, लेकिन प्राइस जो है मेरी 20,856 पे चले गई। व्हाट डज इट शोज कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है मेरा ट्रेड इधर हुआ है, उसके ऊपर एकदम जो प्राइस गई है इधर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है मेरा। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे जो है मेरी नोड्स नहीं है इतनी, और इसके ऊपर तो है ही नहीं बिल्कुल, ये मेरे वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर। ठीक है, ये एक मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, दूसरा, अगर वॉलिटिलिटी की बात करते हैं तो वॉलिटिलिटी ये होती है कि यू कैन सी द बॉडी, अ वेरी स्मॉल बॉडी लेकिन अ लार्ज विक। अब वॉल्यूम इधर ट्रेड हुआ है आपका, ऐसा नहीं है कि इधर वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन प्राइस
बहुत ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन इसने करी, और यहाँ पे जैसे ये टच हुआ है 1876 के लेवल को, एकदम से इसको जो है बायर्स ने आगे ऊपर पुश कर दिया, एंड देन वो ऊपर चले गए, जो भी उसका मामला है XYZ। तो इसने अपना एक फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ा। दिस इज समथिंग के शायद हाई वॉलिटिलिटी को जो है मार्केट फॉलो करती है, दिस इज अ रूल। और मार्केट अगेंस्ट में जाती है जब लो वॉल्यूम की मूव होती है, उसके बाद मार्केट उसके अगेंस्ट में जाती है, राइट? समझ आई? इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस, अगर आपको वो क्लियर आई हो चीज। अगर एक दिन के चार्ट पे मैं बता देता हूँ आपको, एक 30 मिनट चार्ट पे बता दें सर। यू कैन सी सॉरी, पीटीसी पर परपेचुअल, ये रहा। ये जो थी हाई वॉलिटिलिटी मूव थी 26 जुलाई 2021 को, ठीक है? वॉल्यूम भी था और वॉलिटिलिटी भी बढ़ गई थी एकदम से, तो फिर आगे चल के मार्केट ने उसको फॉलो किया। ये कोई रूल किताब में नहीं लिखा हुआ, बट इट्स जस्ट समथिंग ऑन माय जर्नी ऑफ लर्निंग। ये मैंने एक चीज देखी है कि हाई वॉलिटिलिटी को मार्केट फॉलो करती है, लेकिन वॉल्यूम जब लो होता है और उसमें जब बगैर उसके जब मूव आती है, तो उसके अगेंस्ट में जाती है मार्केट के। एकदम से लेट से के मार्केट इस तरीके से फॉलो कर रही थी और एकदम से कोई मूव आई और फिर जरा सी यहाँ पे स्टेबलाइज होना शुरू हुई, इसने यहाँ पे इम्बैलेंसेस बनाए या वॉटेवर, उसके बाद वो अगेंस्ट में नीचे वापस आएगी, स्टेबलाइज होगी, जो कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर का बैलेंस और इम्बैलेंस की जब हमने बात करी थी, ठीक है? तो इट इज समथिंग दैट हैपेंस हियर। तो ये आप जब थोड़ा इसको डीपली एनालिसिस करेंगे, ये थोड़े नए एक तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं शायद, तो उसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा जब आप चार्ट्स पे उसको देखेंगे, लेकिन इट हेल्प्स अलॉट, इट रियली हेल्प्स अलॉट कि आप किस टाइम फ्रेम में देखते हो, क्योंकि विक तो इसने इधर भी बनाई ऊपर, तो वॉल्यूम तो इधर भी था, और विक इसने नीचे भी बनाई, लेकिन मार्केट इस तरफ क्यों फॉलो कर रही है? बिकॉज आपका जो हाई वॉल्यूम था, जो हाई वॉल्यूम नोड्स इसने बनाई है इधर, जो हाई वॉलिटिलिटी नोड्स बनाई है, उसको मार्केट फॉलो करेगी, एंड देन वो डिसेंडिंग ट्रायंगल में होता हुआ जा रहा है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। इसका एक मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजन भी एक बता दूं कि इसकी वजह क्या है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग ऑन द ग्राफिकल दैट्स हैपनिंग। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जो यहाँ का बायर है बेसिकली, वो ये सोच रहा है, या यहाँ का जो ट्रेडर है, कि जो भी रिगार्डलेस वो एक तरीके से लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है 19,200 पे, वो अपना सेल आउट करना शुरू करेगा, नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको एक फुटप्रिंट मिला है कि भाई 18,700 पे तो वॉल्यूम ज्यादा है, 18,700 पे मुझे ज्यादा वॉलिटिलिटी भी मिल रही है, तो क्यों ना मैं यहाँ से छोड़ के मैं यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करूं। सो द पीपल स्टार्ट टू टेक द मनी आउट एंड द मार्केट पुशेस टुवर्ड दैट प्राइस। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग कर करके ये सेल हुआ, देन ये सेल हुआ, यहाँ वाला बायर यहाँ इसने सेल किया, यहाँ वाले बायर ने यहाँ सेल किया, यहाँ वाला बायर यहाँ सेल करा, इस तरीके से नीचे आते आते ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर ये एसआर फ्लिप होगा आपका, ये बॉडी से ये चीज पूरी होगी। तो इसकी बेसिकली साइकोलॉजी ये होती है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बता दें, ट्रेडिंग व्यू पे आपने इसको वॉल्यूम का क्या बताया था कि किस से आपने चेक किया था? ये सेट मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये आप इधर जाएंगे ना इस वाले टूल में, इधर एक फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, यू जस्ट ड्रैग इट, टॉप टू बॉटम ड्रैग कर दें, ओके, बॉटम टू टॉप ड्रैग कर दें, तो उसमें आपको ये बता देगा। ये जस्ट आपको रेगुलर ऐसे दिखेगा, तो इसमें आप जो रो साइज है ये कर दीजिएगा 185, ठीक है? तो ये आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखा देगा इसमें। तो मेरा जो टेम्पलेट है वो मैंने इस तरीके का किया हुआ है, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स, ये मुझे सिर्फ रेलिवेंट चीजें दिखा रहा है, और जो लो वॉल्यूम एरिया होता है वो खुद ही हाइड कर देता है। तो जो रेड लाइन है मेरी, वो है वॉल्यूम एरिया हाई, मतलब ये मेरा हाईएस्ट ट्रेड हुई है इस जगह पे, ये मेरी पीओसी है पर्पल, और ये मेरा वॉल्यूम एरिया लो है। तो इसके नीचे भी ट्रेड हुई है, लेकिन ये के बहुत लो वॉल्यूम है, तो मेरा कंसिडरेशन नहीं है। तो दिस इज द जोन दैट इज कंसिडरेबल है। तो ये है इसकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम सलाम। तो भाई सॉरी आपने मैं शुरू का पार्ट मिस हो गया, तो इथेरियम और बिटकॉइन की आपने कुछ अपडेट दी है ना, वो मैं फिर वरना रिकॉर्डिंग में सुनूं। मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? वरना वो एक ही ठीक है। डबल हो जाएगी। अच्छा एक लास्ट चीज, ये जो कुछ कॉइन्स है ना, जैसे सोल और माना और क्रो,
और एक लास्ट है हारमनी। हारमनी पहले कुछ अच्छा रहा करता था, अभी तो कुछ ज्यादा ही नीचे है। तो डू यू थिंक मतलब वो बाइंग रेंज में अच्छा है? हार्मनी कॉइन मैं इसका एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा, तो उसको ठीक है। वो देख लीजिएगा तसल्ली से। मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल थोड़ा अभी आर्ट्स वगैरह ब्लीड करेंगे हम जब 17,000 या उस पे आते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ये कि उस टाइम पे जो है बाइक के मामला तो उस पर देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो सोल की भी अभी बाइंग ना करें, सोल माना। पोल का नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा इसको नहीं चाहना। ठीक है। ठीक है, चलें। लेट्स कॉल इट अ डे गाइस, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। होपफुली आप लोगों को कुछ मार्केट की अपडेट्स भी समझ आ गई होंगी, मार्केट कहाँ जा रही है, कुछ नई चीजें भी आप लोगों ने सीख ली होंगी। आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो एट अराउंड 8 p.m. inshallah, and those who just missed it, you can go back and check what was the update of BTC and Ethereum. If you have any queries, please ask in the general query. Or again, like I told you guys, किसी के पास टाइम है 3 या 4 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, काइंडली गिव योर ऑनेस्ट रिव्यूज ऑन फेसबुक। इट हेल्प्स अस अलॉट के हमें कहाँ पे बेहतरी करनी है, हमें कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो प्लीज आई विल बी वेटिंग फॉर योर लाइक रिव्यूज ऑन फेसबुक। तो वहाँ पे अपने जो रिव्यूज वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा, जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यूज हो। थैंक यू सो मच, विल गोना बी इन टच। ऑलराइट, चलें, अल्लाह हाफिज।